تمام شیعان حیدر قرار کو السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل اہل بیت سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ گھر میں 2 بچیاں رہتی تھیں۔ وہ بہت شوق سے نوحے سنتی تھی۔ نوحے سن سن کے ان کو کربلا جانے کا بہت زیادہ شوق ہوا۔ ایک دن وہ دونوں کھیل رہی تھی۔ یہ بہت مزہ آیا ہے۔ آیا چلو بھائی جا کر نوئی نہ لگا لیں، کیونکہ میرا نہ نوئی سننے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ ہم اپنے لیے کربلا جانے کی دعا بھی کریں گے۔ ماپی پر کسی نے مر دیے باتو چلو جی خدا تو پوری کیجیے میری دعا۔ اس برس کے اربعین میں قیو یوزائین میں نام ہو میرا لکھا ہوا۔ یا مولا یا مولا مولا شباش بنا دے یا مولا۔ محمد جی آپ بتائیں نا کہ ہم کربلا کب جائیں گے؟ ہم دونوں کو نہ کربلا جانے کا بڑا شوق ہے۔ بیٹا جب مولا عباس ہمیں بلائیں گے نا تب ہی جائیں گے۔ جب ہمارے یوٹیوب پہ 1 ملین سبسکرائبر ہو جائیں گے تب ہم جائیں گے کربلا۔ ہاں بیٹا انشاءاللہ۔ پھر میں کربلا جا کر اپنے ویورز کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی اور یہ غازی سرکار کے روزے پہ جا کر بولوں گی کہ اب بھی کرو ہے محب آپ کے، قلب بلا دو کہ نہیں آ سکے، دل میں یہ آیات کی حسرت لیے کہتے ہیں مولا ہمیں بلوائیے، یا شاہ قلب و بلا ان کی بھی سن لو صدا، وہ بھی بلاوے کا انتظار کریں گے، بس مولا بلا لے سن لے صدائیں ہم کو دکھائے قلب و بلا۔ یہ دعا سن کے مولا میری ویورز کو بھی کربلا بلا لیں گے۔ ہاں بیٹا ضرور۔ اچھا چلو میں تم لوگوں کو ایک بزرگ کی کہانی سناتی ہوں۔ وہ بھی تم لوگوں کی طرح کربلا جانے کے لیے بہت تڑپتے تھے۔ پھر وہ کیسے کربلا گئی یہ کہانی میں آپ کو سناتی ہوں۔ اقوال کی تحصیل کلرکہار میں ایک گاؤں واقع ہے جس کا نام جامرہ شریف ہے۔ یہ جامرہ شریف بابا زمان شاہ موتیاں والی سرکار اور سخی دیدارن پاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام اعجاز حسین تھا۔ ایک دن وہ مجلس سے گھر واپس آئے۔ بیٹا آج مجلس میں ایک ذاکر کربلا کے حوالے سے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی کربلا کا زوار ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ میرے دل میں بہت حسرت ہوئی لیکن میں کربلا کا زوار تو نہیں تھا، اس لیے میں ہاتھ اوپر نہ کر سکا۔ ان کا بیٹا یہ سن کر باہر آیا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ یار کربلا جانے میں کتنا خرچہ آ جائے گا 3 لوگوں کا؟ میں اپنے والدین کو لے کے کربلا جانا چاہتا ہوں، ان کو زیارات کرانا چاہتا ہوں، تم پتہ کرواؤ کہ کتنا خرچہ ہے۔ دیکھو ختیجہ، ہم نے اب بچیوں کی شادی کر دی ہے اور بیٹوں کی بھی، تو میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں مولا حسین اور مولا عباس کی روزے کی زیارت کروں۔ ہمارے بڑے بیٹے کیسر نے ہمیں کہا تو تھا کہ آپ کو زیارات پہ بھیجتا ہوں، لیکن اس وقت ابھی بچیوں کی شادیاں کرنی تھی، اس وجہ سے شاید منظور ہی نہیں تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، کیسر نے اس وقت کہا تھا،
लेकिन उस वक्त हमने बच्चियों की शादी करनी थी, बेटों की भी शादी करनी थी, तो न जा सके। फिर नासिर बार के मुल्क चला गया। वो जब वहां से आया तो उसने हम दोनों को इमाम रजा के रोजे पर भेजा। लेकिन अब मुझे करबला की ज़ियारत का बहुत ज्यादा शौक है कि मैं मौला हुसैन और मौला अब्बास के रोजे की ज़ियारत कर। मौला कोई वसीला बना दे। चलें, अब आपकी तड़प को मौला देख तो रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, मेरा पूरा अकीदा इस बात पे। अब्बा जान, मैंने आप दोनों की करबला जाने का इंतज़ाम कर दिया है। मैं खुद आपको लेकर करबला चलूँगा। आप अपने आईडी कार्ड दें ताकि मैं पासपोर्ट बनवा सकूं। हम तीनों मिलकर करबला जाएंगे। वाकई बेटा, तुमने तो मेरे दिल की हसरत पूरी कर दी। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। तुमने मेरा करबला जाने का ख्वाब पूरा कर दिया। खुदा तुम्हें इसका अजर दे। मौला रजा तुम्हारे रिज्क में इजाफा करे। अरे अब्बा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नासिर भाई ने भी तो आपको मशहद की ज़ियारत करवाई है और कैसर भाई ने भी बोला था। मैं भी तो आपका छोटा बेटा हूँ और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मेरा तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है आप पे। उनका बेटा पासपोर्ट ऑफिस गया और अपना और अपने वालिदैन का पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद वो अपने घर वापस आया। उनके घर फैसल की खाला और खालू उनके वालिदैन को मुबारकबाद देने आए। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुबारकबाद देने आए। मेरे दिल में करबला जाने की बहुत तड़प थी और हसरत थी, लेकिन फैसल ने ये मेरी हसरत पूरी कर दी। खुदा इसको लंबी उम्र दे और इसकी रिज्क में इजाफा करे। और जितने भी मोमिनीन हैं, आप सबको अल्लाह ताला करबला की ज़ियारत करवाए। हाँ इजाज़ भाई, वहाँ जाकर हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि मौला हमें भी बुलाए। फैसल अपने वालिदैन के कमरे में आया और उनसे कहने लगा, अब्बा जान, मेरे पासपोर्ट में कुछ मसला आ रहा है। आप दुआ करें कि वो मसला हल हो जाए। अगर वो मसला हल ना हुआ तो मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। अरे बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुमने इतने सच्चे दिल से ये सारा इंतजाम किया है, तो मौला हुसैन के सदके में तुम्हारे पासपोर्ट का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा और हम सब मिलकर जाएंगे। खदीजा, दुआ करो कि फैसल के पासपोर्ट का मसला जल्द हल हो जाए, क्योंकि वो अगर हमारे साथ जाएगा तो हम अच्छी तरीके से ज़ियारत कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। एक दिन उनकी बेटी उनके घर आई और कहने लगी, अब्बा जान, गांव में सब कह रहे हैं कि जो सवार कोयटा बॉर्डर पर जाते हैं उनको पकड़कर कत्ल कर देते हैं। देखो बेटा, ऐसी बातें मत करो। हम मौला हुसैन के सफर पे जा रहे हैं। अगर हम मारे भी जाएं तो हमें शहादत का रुतबा मिल जाएगा। देखो बेटा, एक दिन मरना तो सब ने है। अगर हम इमाम हुसैन के रास्ते में मारे जाएं तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। इसलिए तुम लोग हमें मत रोको। ज़ियारत पर जाने से पहले उन्होंने अपने घर में एक मजलिस का एहतमाम किया जिसमें सिर्फ उनके घर के ही लोग थे। फैसल ने मजलिस पढ़ी और उसके वालिदैन और बहनों ने बैठकर उसकी मजलिस सुनी। उन सब ने मिलकर बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दिया। वो ज़ायरीन की बस के पास खड़े थे कि उनकी बेटी कहने लगी, अब्बा जान, अपना ख्याल रखिएगा। करबला में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। बेटा, सब लोग दुआ करो कि हमारा काफिला खैर खैरियत से करबला पहुंच जाए। ज़ायरीन की बस करबला के लिए रवाना हो गई। हम इस वक्त बैनुल हरमैन में खड़े हैं। बैनुल हरमैन की ज़ियारत करने के बाद उन्होंने
मकाम कफ़े अब्बास की ज़ियारत की। ये वो मकाम है जिस जगह मेरे मौला अब्बास के बाजू कलम किए गए। इस मकाम को मकाम कफ़े अब्बास कहते हैं। फिर उन्होंने नहर अलकमा की ज़ियारत की। ये वही नहर है जहाँ मौला गाजी अब्बास सकाए सकीना का मशकीज़ा लेकर आए। इसके बाद उन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर जाकर ज़ियारत की। देखिए अब्बा जान, मौला अब्बास ने हमें भी बुला ही लिया। फिर उन्होंने मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री की ज़ियारत की और खूब पुरसा दिया मौला गाजी अलैहिस्सलाम को। हाय मेरे मौला गाजी अब्बास। खदीजा हरम में बैठी हुई थी कि इतने में इजाज़ हुसैन आए और कहने लगे, ये देखो खदीजा, मैं अपने लिए कफन लेकर आया हूँ। हमने अपने बच्चों के फराज अंजाम दे दिए हैं। अब मेरा तो जी चाहता है कि बस मेरी जिंदगी खत्म हो जाए और मुझे इमाम हुसैन अपने पास बुला लें। बस यही ख्वाहिश है मेरी। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर तो लोग अपनी जिंदगियाँ मांगने आते हैं, खुशियाँ मांगने आते हैं। आप मौत मांग रहे हैं। खदीजा, मैंने मौला हुसैन और मौला अब्बास का रोज़ा देख लिया है। अब मेरे दिल में जीने की कोई हसरत नहीं है। फिर वो मौला अली अलैहिस्सलाम के घर आए और मौला के घर की ज़ियारत की। खदीजा, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के सामने अपनी कब्र बनाई। उनकी बीवी ने जब ये देखा तो वो पास आई और कहने लगी, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? खदीजा, मैं अपनी कब्र इसलिए यहाँ बना रहा हूँ ताकि बरोज़ महशर मैं यहाँ से ही उठाया जाऊँ। फिर उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक की ज़ियारत की और मौला को खूब पुरसा दिया। हाय मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला। फिर उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के सेन की ज़ियारत की। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी सोचा भी न था कि हम यहाँ पर भी आएंगे। मौला अली के बड़े एहसान हैं। मस्जिद जमकरान में उनकी तबीयत नासाज हो गई। उनका बेटा कहने लगा, अब्बा जान, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको पाकिस्तान भेज देता हूँ। अब्बा जान, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने भाई को कह दिया है, वो लाहौर एयरपोर्ट पे आपको लेने के लिए आ जाएंगे। मौला हुसैन खैरियत से आपको घर पहुंचा दें। इजाज़ हुसैन की फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। उनके साथ एक आदमी भी था जिन्होंने पूरे सफ़र में उनका ख्याल रखा। बेटा, तुम कौन हो? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अगर अपना नंबर है तो मुझे दे दो। मेरा कोई नंबर नहीं है। मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपको आपके बच्चों तक खैर खैरियत से पहुंचाऊं। ये कहकर वो आदमी गायब हो गया। यकीनन वो कोई फरिश्ता था। उनको लेने के लिए उनका बड़ा बेटा, बहू और दामाद और बेटी आए और वो सब उनको लेकर घर आ गए। अरे कैसे? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। अबू की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और उन्होंने बोला कि मेरा नाम इजाज़ हुसैन है और मैं पाकिस्तान से हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ये ज़हनी तौर पे अभी भी करबला में है। और फिर उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटियां रोने लगी। अबू आप कहाँ चले गए? अबू। फिर वो बहन भाई अपने बाबा की कब्र पे रोने लगे। सुबह को उनके घर उनके खालू आए और उनसे कहने लगे, बेटा, तुम लोग हौसला करो, इतना ज़्यादा मत रो। मरना तो हक का रास्ता है।
एक न एक दिन सबको ही जाना है इस दुनिया से। तुम यही सोचो कि तुम लोगों के बाप को कितनी अच्छी मौत आई है। उनकी खाला और खालू घर आए तो उनकी खाला कहने लगी, जब से इजाज भाई दुनिया से गए हैं मेरे भांजियाँ भांजे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनको देखकर मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। उनके खालू सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एजाज हुसैन इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठे थे। इतने में मौला ने फरमाया, जाओ एजाज, तुम्हारे बच्चे बहुत रो रहे हैं। एजाज हुसैन मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों से उठे और अपने भाई अरशद के पास आए और बोले, अरशद, तुम मेरे बच्चों से कहो कि जो हो गया है वो ठीक है। मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, मैं बहुत अच्छी महफिल में होता हूँ। जब वो रोते हैं तो मुझे बार बार मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि जाओ अपने बच्चों को तसल्ली दो। ये पैगाम देकर वो दोबारा मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ गए। सुबह जब उनके खालू की आँख खुली तो वो ये ख्वाब सुनाने एजाज हुसैन के बच्चों के पास आए। बेटा, कल रात मुझे तुम लोगों के बाबा ख्वाब में आए। वो मौला अली मुश्किल कुशा के कदमों में बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि वो मुझे रोकर परेशान न किया करें, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। जो बंदा करबला जाता है उसकी सारी दुआएं पूरी हो जाती है मम्मा। क्यों ठीक कहा ना मैंने मम्मा, है ना? हाँ बेटे, बेशक जो भी करबला जाते हैं मौला उनकी सब दुआएं सुनते हैं। मौला तो कहीं भी बैठो और सच्चे दिल से दुआ करो तो ज़रूर सुनते हैं, लेकिन एक हसरत होती है मोमिन की कि वो करबला जाए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो यूट्यूब पे बेस्ट स्टोरीज हमारे चैनल नहीं है, उसको सब्सक्राइब कर लेना।